Welcome to LDL 12. It's lockdown lecture 12. In today's lecture, we'll discuss the reactions of haloarenes. Previous lecture, we have finished nucleophilic reactions, reaction with metals, reduction reactions, and other reactions for haloalkanes. Today, we'll discuss the reactions of haloarenes. Haloarenes reactivity is somewhat less compared to that of reactivity of haloalkanes towards nucleophilic reaction. What are the reasons behind the low or less reactivity of haloarenes towards nucleophilic reactions? Haloarenes can give nucleophilic reactions, nucleophilic substitution reaction, but their reactivity towards a nucleophilic reaction is less compared to that of haloalkanes. What are the responsible reasons? In our textbook, we have 4 responsible reasons for a low reactivity of haloarenes. I think we have a topic on page number 350 of a textbook. Low reactivity of haloarenes. 4 reasons are listed in our textbook. The first one is resonance. Resonance shown by haloalkane. Haloarenes. In haloarenes, we have a halogen associated with a benzene ring. Halogen, like chlorine, possesses 3 free electron pair, or we can say that non-bonding electron pair. This non-bonding electron pair are in conjugation with this pi electron. We know that benzene ring possesses pi electrons. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है. बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्जुगेशन, इट विल प्रोड्यूस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, दैट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डीलोकलाइज होगी. कैसे? फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे प्रोड्यूस होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां यूटिलाइज होगी फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन ऑफ अ बेंजीन रिंग एंड हैलोजन. It makes a partial double bond between the carbon and halogen. Partial double bond produces between the carbon and a halogen due to the electron pair contributed by halogen towards bond formation. Because of this electron pair shifted over this carbon makes this carbon negatively charged. So carbon anion produced at ortho position. Ortho position produces carbon anion. It's a first resonating structure. Haloarenes can produce. In the second resonating structure, again this electron utilized towards bond formation and electron pair shifted over this carbon to make this carbon negatively charged. So a second resonating structure we are having, in which we have carbon halogen partial double bonding, negative charge over carbon at para position. Third electron pair utilized in bond formation. This electron pair shifted to this carbon makes this carbon negatively charged. In this way, we'll have a 3 resonating structure in which a partial double bond is created between carbon of a benzene ring and a halogen. Because of this partial double bonding, breaking of carbon halogen bond becomes difficult. Breaking of this carbon halogen bond becomes difficult. When nucleophile attacks, breaking of carbon halogen bond becomes difficult due to the formation of a partial double bond produced due to the resonance. And that's why nucleophilic reactions become more difficult, or nucleophilic substitution reaction becomes more difficult in case of haloarenes. हेलोएरीन्स की लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, उसका एक रीजन है रेजोनेंस प्रोड्यूस्ड बाय हेलोएरीन्स. हेलोएरीन्स में हेलोजन के ऊपर जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, वो यूटिलाइज होती है इन अ पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. डीलोकलाइजेशन जो है वो पार्शियल बॉन्ड क्रिएट करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड जो डिफिकल्ट है टू ब्रेक, एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर हेलोएरीन्स. So it's the first reason for the low reactivity of haloarenes towards the nucleophilic reaction.
हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के टुवर्ड्स लो रिएक्टिविटी शो करते हैं। उसका पहला रीजन है उसकी रेजोनेंस। रेजोनेंस उनको ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, और इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो डिफिकल्टी से परफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि ये हेलो रिएक्शंस जो है या हेलोएरिन रिएक्शंस जो है नहीं देते न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, दे प्रोड्यूस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दे गिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, लेकिन लेस रिएक्टिविटी ये इंडिकेट करती है वी नीड स्ट्रॉन्ग एंड विगरस कंडीशन। अंडर स्ट्रॉन्ग एंड विगरस कंडीशन ओनली they will perform a nucleophilic reaction. The reason, here we are discussing the reason for low reactivity, and one of the reason is the resonance. The second reason for the low reactivity of haloarine is the carbon halogen bond. In haloalkane, the carbon halogen bond, the carbon involved in carbon halogen bond possesses sp3 hybridization. But in haloarines we know that all the carbon of a benzene ring, they are sp2 hybridized. Halogen associated with sp2 hybridized carbon in haloarine, while in haloalkane halogen is associated with the sp3 hybridized carbon. In case of a carbon halogen bond, when a carbon is sp3 hybridized, its bond length is 177 picometer. 177 picometer. While the bond length of a carbon halogen bond in sp2 hybridized carbon, the bond length is 169 picometer. We know that strength of a bond depends on a bond length. Shorter the bond length, higher is the strength of bonding. जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही डिफिकल्ट होगा वो बॉन्ड को ब्रेक करना। तो सिंपली हम ये बता सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से ब्रेक हो सकता है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ 177 पिकोमीटर है। उसकी कंपैरिजन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हमको ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर है, वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट मींस वी नीड विगरस एंड स्ट्रॉन्ग कंडीशन। तो ये सेकेंड रीजन है जो हम कह सकते हैं कि हेलोएरिन्स जो है वो हेलोअल्केन्स की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। सेकेंड रीजन फॉर द लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स compared to that of a haloalkanes towards a nucleophilic reaction, it's a hybridization of carbon involved in CX bonding. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो कार्बन इन्वॉल्व है उसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टुवर्ड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ अ रिएक्टिविटी की जो स्ट्रेंथ है या रिएक्टिविटी जो है हेलोअल्केन्स की वो हेलोएरिन्स से ज्यादा क्यों है? क्योंकि हेलोअल्केन्स में जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हेलोएरिन्स का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 177 पिकोमीटर, जबकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए ये बॉन्ड लेंथ हो जाती है 169 पिकोमीटर। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, greater is the strength of a bonding. Greater the strength of a bonding, that means we need more amount of energy to break the bond. That means we need a strong and vigorous condition, indicating that haloarines are less reactive than that of haloalkanes. छोटा सा गिव रीजन पूछ सकते हैं 2 मार्क में, स्मॉल क्वेश्चन, छोटा 2 मार्क का क्वेश्चन है कि लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स कंपेयर्ड टू दैट ऑफ हेलोअल्केन्स। गिव रीजन, तो ये 2 रीजन आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में 4 रीजन है जो लो रिएक्टिविटी इंडिकेट करते हैं। The third reaction is the instability of a phenyl cation produced. ये रब कर रहा हूं मैं। और तीसरा जो रीजन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर द लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव, एंड द थर्ड रीजन फॉर इट्स लो रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिविटी is instability of a phenyl cation. Instability of phenyl cation, जब हेलोअल्केन में से
जब हम हेलो अल्केन में से कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वो कार्बोकैटायन है। ये अल्काइल कार्बोकैटायन है, अल्काइल। जबकि फिनॉल में से हेलो एरीन में से अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जानते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके चला जाएगा, क्लोरीन। सो इट प्रोड्यूसेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर दिस कार्बन। दिस फिनाइल कैशायन is unstable because of its instability. It readily give back the original reactant. That means यहां पर फिनाइल कार्बोकैटायन जो अनस्टेबल है, वो फिनाइल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जो है वो डिफिकल्ट है, इसीलिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो पाता नहीं है। इट्स अ थर्ड रीजन फॉर द लो रिएक्टिविटी ऑफ अ हेलो एरीन्स then hello alkanes. Third reason is instable phenyl carbocation, और इसीलिए फिनाइल कार्बोकैटायन की इंस्टेबिलिटी हेलो एरीन्स के लिए SN1 रिएक्शन प्रोडक्शन के लिए पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। मतलब हेलो एरीन्स की SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने की जो टेंडेंसी है वो ना के बराबर है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म के दौरान ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। एंड दैट्स व्हाई दे रिफ्यूज टू go through the SN1 mechanism because they have unstable phenyl carbocation. So ये third reason है for the low reactivity of haloarenes. And the fourth reason जो बुक में मेंशन किया गया है, it is repulsion produced between electrons present in benzene. We know that benzene possesses pi electron cloud. So pi electron cloud, that means electrons are present in a benzene ring and coming nucleophile. We know that nucleophile is electron rich species. जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए, वो न्यूक्लियोफाइल पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और बेंजीन रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन रिपल्स ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई कोई भी बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्स ईच अदर। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगेन we can face or we can have a low reactivity of haloarenes towards the nucleophilic reactions. So we have four responsible reasons for the low reactivity of a nucleophilic reactions in haloarenes. Number one, resonance produced by haloarenes, delocalization of electrons जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है और इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस डिफिकल्ट है फॉर haloarenes कंपेयर टू दैट ऑफ haloalkanes. दूसरा रीजन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। जो हेलो अल्केन्स में कार्बन इन्वॉल्व है कार्बन हेलोजन बॉन्ड में, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि हेलो एरीन्स में जो कार्बन इन्वॉल्व है कार्बन हेलोजन बॉन्ड में, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जब बॉन्ड लेंथ मतलब जो इन्वॉल्व होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 169 पिकोमीटर और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए वो बॉन्ड लेंथ हो जाती है 177 पिकोमीटर। हम जानते हैं शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड, दैट मींस वी नीड ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्डिंग। सो वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो हेलो एरीन्स जो है वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू दैट ऑफ हेलो अल्केन्स। तीसरा रीजन था हमारा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। जो फिनाइल कैटायन है वो अनस्टेबल है और इसीलिए फिनाइल कैटायन का फॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता बेंजीन। बेंजीन जो है वो कोई भी ऐसा रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा जिसमें उसमें फिनाइल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो और इसीलिए वो SN1 रिएक्शन कभी भी फॉलो करता नहीं है, वो मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। And the last one, repulsion produced between the electrons present in the benzene ring and the coming nucleophile which having electron. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से हेलोएरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है वो आसानी से देते नहीं है। तो ये था रीजन बिहाइंड द लेस रिएक्टिविटी ऑफ अ हेलोएरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेलोएरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देंगे, बट दे नीड स्ट्रॉन्ग
and vigorous condition. Under strong and vigorous condition, they undergo nucleophilic substitution reaction. Let's see the example of a nucleophilic reaction given by haloarine. We are discussing reactions of haloarine. The first reaction given by haloarenes are nucleophilic reactions. Nucleophilic reaction given by haloarenes. Chlorobenzene reacts with NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure. Stage 1, chlorobenzene reacts with NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure under acidic medium. Stage 2 reaction. Stage 1 reaction is with sodium hydroxide and stage 2 reaction is with the acid H+ ion. In this condition, nucleophile produced from NaOH. Nucleophile produced from NaOH. NaOH produces OH as a nucleophile. This nucleophile attacks the benzene ring, will break the carbon-halogen bond, and Cl gets substituted by OH. So chlorobenzene changes to phenol. This reaction is known as industrial preparation of a phenol, known as Dawes process. Dawes process. ये Dawes process है जहां पर हम फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं. ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. लेकिन यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं दिस रिएक्शन एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन गिवन बाय हेलोएरिन. हेलोएरिन देख सकते हो आप. हेलोएरिन के अंदर से हेलोजन को हमने न्यूक्लियोफाइल OH से सब्स्टिट्यूट तो कर लिया, लेकिन ये रिएक्शन इजी नहीं है. वी नीड स्ट्रॉन्ग एंड विगरस कंडीशन. सी NaOH reacting with chlorobenzene at 623 Kelvin temperature, 300 atmospheric pressure in acidic medium. Then and then only this reaction becomes possible. तभी जब ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हेलोएरिन्स रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंड विगरस कंडीशंस आने के बाद. हर बार इतना स्ट्रॉन्ग और विगरस कंडीशन दे पाते नहीं है, और इसीलिए ये मुश्किल काम को आसान करना है. क्या कोई ऐसा रास्ता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये रिएक्शन को थोड़ा ईज आउट कर सके? ईज आउट करना है मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग और विगरस कंडीशन है उसको थोड़ा ईज करना है. अब ये सवाल जो है वो हमारी राजनीति से जुड़ा हुआ है. हम जानते ही हैं नरेंद्र मोदी एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर तक के हमारे सारे प्रॉब्लम्स हम जो अभी फेस कर रहे हैं वगैरह उनमें भी अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. उनको जब भी कोई रिएक्शन या कोई काम करना हो और वो काम मुश्किल हो, तो वो मुश्किल काम को आसान कौन बनाता है? सोचो, अमित शाह. हमारे मंत्री अमित शाह दोनों गुजराती मिलके सारा काम निपटा रहे, लेकिन मोदी को किसकी हेल्प चाहिए? अमित शाह की. तो अगर कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा टास्क है जिसमें ज्यादा मुश्किल आ रही है, जैसे ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो रिएक्शन को सुधारने के लिए मोदी जी किसका सहारा लेंगे? अमित शाह का. हम यहाँ पर ये रिएक्शन में भी अमित शाह रिएक्शन के नाम से इसको जानेंगे और देखिए कैसे अमित शाह हमको हेल्प कर सकते हैं. हमारे पास क्लोरोबेंजीन तो है, क्लोरोबेंजीन Cl, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, अगर ये NO2 को हम पैरा पोजीशन पर रख लेते हैं क्लोरोबेंजीन की, NO2 लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट अ पैरा EWG called electron withdrawing group which has a tendency to withdraw the electron, जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग कैपेसिटी रखते हैं. अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम पैरा पोजीशन पर रख देते हैं क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप, और बाद में अगर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो ये रिएक्शन के लिए हमको कंडीशन में थोड़ा ईज आउट देखने को मिलेगा. दैट मींस वी नीड NaOH at 443 Kelvin temperature
इन एसिडिक मीडियम एट नॉर्मल प्रेशर। जो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर अब रिक्वायर्ड नहीं है। हम नॉर्मल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सिंपल, उस पर भी ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और 443 केल्विन टेम्परेचर ये जो टेम्परेचर चाहिए इंस्टेड ऑफ 623, अब ये रिएक्शन ईज आउट हो चुका है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NO2, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NO2 एट पैरा पोजिशन। अगर NO2 पैरा पोजिशन पर है तो क्लोरोबेंजीन में से ये क्लोरीन हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय अ न्यूक्लियोफाइल कॉल्ड OH। अब ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा ईज आउट हो चुका है और इजीली Cl जो है वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है बिकॉज ऑफ OH इन फॉर्म ऑफ OH बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट पैरा पोजिशन NO2। इसका एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ 1 NO2, ये NO2 हमारे अमित शाह है। मोदी जी की कोई भी परेशानी जो है वो कौन दूर कर देता है? अमित शाह। तो रिएक्शन कंडीशन को ईज आउट करने के लिए अमित शाह पहुंच गए। अमित शाह पहुंच गए तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है या रिएक्शन विगोरसिटी जो है वो कम हो गई, मतलब लेस विगरस कंडीशन में भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो गया। सेम कंडीशन अगर हम यहां पर 2 अमित शाह, मतलब दो बार अमित शाह पहुंच गए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा बोथ पोजीशन possesses NO2 as a electron withdrawing group, what happens? ये रिएक्शन थोड़ा और ईज आउट हो जाएगा, NaOH and the required temperature is 368 Kelvin in acidic medium। देख सकते हो कि रिएक्शन की विगोरोसिटी स्टेज वाइज कम हो रही है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ NO2 प्रेजेंट। NO2 एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब हेलो एरीन्स के साथ जुड़ेंगे वो हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसोसिएटेड विद द हेलो एरीन्स विल इंप्रूव द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स और इसीलिए रिएक्शन के अंदर विगोरोसिटी कम होती जा रही है और रिएक्शन जो है वो थोड़ा और इजी होता जा रहा है। और रिएक्शन की ये जो इजीनेस है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। थर्ड कंडीशन, जब हम यहां पर एक और NO2 को ऐड कर देंगे 2, 4 और 6 पोजीशन के ऊपर क्लोरोबेंजीन कंटेनिंग NO2 in the form of electron withdrawing group at 2, 4 and 6 position, then हमारे पास यहां पर NaOH एक रिएजेंट था टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये रिएक्शन वार्म वाटर के साथ भी हो सकती है। वार्म वाटर, गर्म पानी, अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए गर्म पानी, जानते हैं कोरोना की बीमारी में हेल्प करता है। वार्म वाटर हमेशा आ गए 3 हमेशा, ये रिएक्शन और ईज हो गया और अब सिंपली वार्म वाटर भी Cl को सब्स्टिट्यूट करके OH में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इंडिकेशन है दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कॉल्ड EWGs, greater the number of EWGs associated, higher will be the reactivity for haloarenes। haloarenes की रिएक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। greater the number of electron withdrawing group associated, higher is the reactivity for haloarenes towards the nucleophilic reaction। तो ये है पहला रिएक्शन फॉर haloarenes जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस फॉर haloarenes। haloarenes susceptibly behave a nucleophilic reaction। हम ये कह सकते हैं कि strong and vigorous condition is required for this, not easier condition are able to produce a nucleophilic reaction। nucleophilic reaction easy condition में possible नहीं है। क्यों? क्योंकि haloarenes are less reactive than haloalkanes। इसके 4 responsible reason हम पहले पढ़ चुके हैं। ये 4 रीजन की वजह से haloarenes less reactive है, लेकिन फिर भी ये haloarenes की रिएक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सकता है या हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन की विगोरोसिटी को कम किया जा सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज मोर इफेक्टिव रादर देन प्रेजेंट एट अ मेटा पोजीशन। NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पर, तो वो कोई भी हेल्प नहीं करता है टू इंप्रूव द रिएक्टिविटी ऑफ haloarenes। haloarenes की रिएक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए NO2 की पोजीशन होनी चाहिए ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही। मेटा पोजीशन पर यहां NO2 की इंपॉर्टेंस नहीं है या NO2 जो है वो कोई ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है व्हेन इट इज प्रेजेंट एट द मेटा पोजीशन फॉर इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ haloarenes टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये था न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जिसमें हमने डिस्कस किया रिएक्शन का कंडीशन मैकेनिज्म और हाउ टू ईज आउट द रिएक्शन बाय एडिशन और बाय इंट्रोड्यूसिंग
द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस है फॉर हेलोएरिन्स, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस वी हैव अ सेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। This electron deficient species has a tendency to accept the electron pair, and that's why they produces electrophilic substitution reaction. लेकिन हमारे लेक्चर्स की कुछ लिमिटेशंस है रिकॉर्डिंग की, so we'll discuss the electrophilic reaction in a next part of this lecture. Thank you.